Assembly of Pakistan, a young and active member of National Assembly of Pakistan. She speaks really well on issues of interfaith harmony in the country, of building peace through social justice and humanism. So thank you, ma'am, to be here, and please share your comments. Assalamu alaikum and Bismillahirrahmanirrahim and good evening ladies and gentlemen. पहले तो थैंक यू, आपने मेरी तरक्की कर दी. वैसे तो मैं पार्लियामेंट में थी, सेनेट में अभी नहीं गई मैं. Okay, it's okay, doesn't matter. Thank you very much for the peace chart, like this organization, all my dignitaries, all my very senior members. मैं आप सबके सामने जो जितने माशाल्लाह लर्नड लोग बैठे हुए हैं उन सबके सामने बात करना ऐसे ही जैसे सूरज को रोशनी दिखाना. सच अ नॉलेजेबल लीडर्स. मुझे तो वैसे ही समझ नहीं आ रही कि किस तरह से बात करूं, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई एम वेरी it's very great to see Mr. Qibla Ya Sadiq sitting over here. This is my second term in the parliament. Rumina Khurshid Alam, when we talk, I'm really thankful of Absar Alam साहब आपने politicians की काफ़ी सारी बातों को भी रोशनी डाली और भी बहुत सारे लोगों की बात हुई. As if I talk about myself, because I believe whenever we have to take a start on something, you have to take a start from your own self. जब तक आप अपना खुद का एहतसाब नहीं करते, by taking the liberty of Mr. Absar Alam as he was in bilingual, so I also wanted to take the same steps I would like to follow. When we say something that we want to bring some change or to do something, I think, and I'm sure that you have to take first step from your own self. And when we talk about peace, and you have said in my intro that on interfaith harmony and knowledge कि इस तरह की चीज़ों पे काम किया, तो हम लोगों ने लास्ट टर्म में along with Qibla Ya Sadiq साहब, we have tried our level best because I worked a lot. As a politician, this is my second term, but I'm not from any political background. मेरा एक बड़ा humble सी family से ताल्लुक़ है, and I have taken great challenges in my life. Like I've taken few challenges in my life in which you can say it was not an easy journey, and I think no one's journey is easy. But I have taken some different steps in my life जिन्होंने शायद ज़िंदगी को थोड़ा मुख्तलिफ किया. I was being brought up with my grandparents. I belong to a broken family, but this is not to tell any sympathy, but as the matter of a fact, when Absar Alam साहब ने भी आज जो एक बहुत खौफनाक वाक़या इस शहर के अंदर हुआ, और इस तरह से पहले भी एक हमारी बच्ची के साथ जो इस्लामाबाद की इस हदूद में थी उसके साथ वाक़या, और आज भी मेरे ख़्याल में हम मुंतज़िर हैं कि कब इंसाफ होगा और कब जो है वो तमाम तर हक़ाइक़ और शवाहिद होने के बावजूद भी अभी तक जो है हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी ज़मानत की अपील होती है और कभी कुछ. तो मैं ज़िंदगी में बहुत सारे challenges I also faced. I was being from another religion, then I've been converted, so I've been seen so much in my life. और as a politician भी जब हम लोगों ने interfaith harmony की बात होती थी, क्योंकि मैंने बचपन से एक चीज़ सीखी that who am I was being taught by my grandfather that like when I was a child, so he brought me up and he was in retired army के थे वो, और मुझे ही सिखाया गया कि मैं पाकिस्तानी हूँ. ये सबक मैंने बचपन में 4 साल की उम्र से सीखा, और जब मैं स्कूल में गई तो वहाँ पर मुझसे किसी ने तब जब सवाल किया कि तुम कौन हो, तुम्हारा ताल्लुक़ किस उससे है, तो मैं कहा मैं पाकिस्तानी हूँ. एंड शी लाफ्ड. आई सेड नहीं, कहाँ से हो, कौन हो? मैं गुजरांवाला में रहती हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ. एंड देन दे मेक फन ऑफ माइन, और मुझे लगा शायद मैंने कोई बहुत गलत बात की है. देन आई वेंट बैक एंड आई आस्क्ड माई ग्रैंडफादर हु एम आई. सो मुझे याद है आज भी कि वो मुझे कभी डांट नहीं पड़ी थी, और मुझे डर भी लगता था कि डांट ना पड़े. इस डर से मैं हमेशा होमवर्क और टेस्ट की तैयारी, एग्ज़ाम्स की हर चीज़ टाइम से कर लेती थी कि मुझे डांट ना पड़े. उस टाइम पे थोड़ा दौर था, स्टिक के साथ मार भी पड़ती थी, तो मुझे किसी को पड़ती थी तो डर से बुखार हो जाता था. बट टू जस्ट मेक इट शॉर्ट, आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन टू माई ग्रैंडफादर एंड ही सेड हु टोल्ड यू दिस. आई टोल्ड यू, बट मैंने कहा नहीं, दे हैव आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन. सो बहरहाल, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि अच्छा मैं मज़हब को भी फॉलो करना है, लेकिन तब तक यही पता था मज़हब को डेफिनेटली हर कोई प्रैक्टिस करता है, लेकिन योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड हैव टू बी योर कंट्री. एंड व्हाट आई हैव लर्नड दैट वाज फ्रॉम माय स्कूल एंड फ्रॉम माय होम, एंड दैट वाज माय ग्रैंडफादर.
that whatever I learned about Pakistan, about my country, about the law, about Kashmir, about anything, that was from my home and school. So उसके लिए हम लोगों ने, जब मुझे आज तक समझ नहीं आती कि हमारे इस मुल्क में इंटरफेथ हारमनी पर क्यों इतना ज़ोर दिया जाता है, जबकि हम अक्सर ममालिक में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर, जब मैं उस टाइम आज से 3 साल पहले when I was Christian, तो मुझसे सवाल किया जाता था वहाँ तो ये पाकिस्तान में ब्लेस्फेमी लॉ है, ये है 295C है, इसके ऊपर बात करें. दैट वाज अ ओपन लाइक वेरी ह्यूज डिबेट इन विच अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज बीन ऑलवेज ट्राइड माई बेस्ट कि मैंने उन तमाम बातों को फेस भी किया, बताया भी. और जो पाकिस्तान में, मैं नहीं कहती कि हर चीज़ बड़ी खूबसूरत और खुशाइन है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें आज भी बहुत सारे दूसरे ममालिक से बेहतर हैं. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज़, आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू सी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वेयर लाइक द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज स्टिल दे डोंट हैव अ नंबर ऑफ अ वुमन in their parliaments as much we have, as still they are fighting for the equal wages. But in Pakistan, our women, though are in a very strong positions or in different positions as well, they are having the equal right of wages, and yes, they are getting few of the respect as well. I don't say still the picture is very bright, but still मुझे जब दूसरे ममालिक में मैं जाती हूँ तो वहाँ देखते हैं कि rate of abuse, rate of rape, these all are very much. But in our country, as we have a free राइट कि आप किसी को भी पगड़ी उतार सकते हैं, किसी को पहना सकते हैं, आप किसी को चाहें तो उसको गाली गलौज कर सकते हैं, उसकी शजराए नसब उठा के उसके माँ बाप, बहन भाइयों को, किसी को भी आप जो है वो कर सकते हैं. बिकॉज आई, एज इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई फेस दीज ऑल चैलेंजेस. लास्ट टर्म में एक प्याम में पाकिस्तान के नाम से कोशिश जो है, किबला या सादिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं और शायद आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने उसको देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा. उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी काम किया. मुझे खुशी और फ़ख्र तो नहीं मैं कहूँगी, खुशी ज़रूर थी कि एक आइडिया था जो लॉन्च किया और वो एक्सेप्ट हुआ और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने और अदारों ने उसको ओन भी किया डिफरेंट वे में. आई वॉन्टेड टू ब्रिंग इन योर नोटिस दैट आई वॉज द वन हु ब्रॉट द लॉ, like I tabled that bill in the parliament that we should have a commission on how to counter the extreme violence. उसके अंदर जो फॉर्मेशन दी गई थी, मैंने जो उस पर बात की थी जिसको काफ़ी सराहा भी गया, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पे कुछ लोगों को पसंद नहीं शायद आया और वो शेल्फ हो गया. दैट वी हैव टू ब्रिंग एवरीवन ऑन द बोर्ड. We have to come up with the academia, we have to work with the masses, we have to work along everyone, we have to bring those people, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे वो चार्टर ऑफ पीस आप ले आएँ, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ले आएँ, आप कुछ भी ले आएँ, उसकी जो फॉर्मेशन है वो इतनी बड़ी और ग्रैंड लेवल पे कर दी जाती है कि प्राइम मिनिस्टर को उसका बोर्ड पे बिठा दें, आप इस ऑफिसर को बिठा दें, एंड देन दे डोंट मीट, and because they don't meet, we can't achieve those goals. So I think we need to, like, as you've asked my view on this charter, I've gone through with it. I believe there are very beautiful things in it, but still, if we go through the Constitution of Pakistan, as Mr. Ibsar Alam already mentioned, that हमारे से ज़्यादा शायद पीसफुल मुल्क या कानून साजी में बेहतरीन मुल्क कोई नहीं लगता. लेकिन आई थिंक मोर ओवर वी नीड टू फोकस ऑन द सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. वी ऑल टॉक अबाउट द एजुकेशन system, but have we gone through with the schools which we our students are like हमारे अपने बच्चे जिन schools में पढ़ रहे हैं, उन schools के बच्चे जो जहाँ पे आप 34 हज़ार या पता नहीं कितनी फीसेस हम देते हैं, कि वो कौन सा एजुकेशन का सिस्टम जो है वो डाल रहे हैं, वो कौन, like youngsters, they don't know about the Iqbal as well. Even they don't know about पाकिस्तान के 14 निकात का नहीं उनको पता. So I think we have to work very much on that. And then if we just more important, I think कि हमारी जो यूथ है, जिस यूथ का हम बार बार जिक्र करते हैं, आपकी बहुत बेहतरीन कोशिश है. हम लोग आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट इन माई हम्बल कैपेसिटी, और विच आई एम हैविंग टू एंगेज मोर ओवर द यंगस्टर्स. बट द बिगेस्ट चैलेंज इज, जी मुझे ओके रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई जस्ट टेक 2 minutes मोर. जो सबसे ज़्यादा चैलेंज है, हम यूथ को एंगेज तो करते हैं लेकिन हम उनको सुनना नहीं चाहते. दे वॉन्ट टू से मोर.
आई थिंक उनको, और फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव जोन में सोशल मीडिया पे गालियों की मद में निकलती है, कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे निकलती है. तो इफ़ यू रियली वांट टू ब्रिंग द पीस which is lacking behind so much, we need to work on the tolerance side. We need to accept that we need to agree to disagree, and we have to give the right to disagree to agree as well. With this note, I will not take much time. Anything which I can do along from the parliament side, legislation, of course there is already, there are so many legislations, but I think we need to sit and do more dialogues where such a mashallah learned people are there. I think in their guidelines we can sit, and I think that will be much more better. Our SDGs forum is very much available there, so you guys can come, like as you have said कि आप चाहते हैं कि आपके ऑफिसर्स या लोगों के साथ engage करें. I would really appreciate if you can come to our SDG secretariat, because we are working on few things, and we are very much open for all sort of suggestions. Thank you. So now that we have representation from the National Assembly, and sorry, I called you Senator. So the next speaker is a Senator. I request Senator Faridullah Babar Sahab, who is a prominent senior political leader and an active proponent of promoting peace through democratic culture and norms. When he was a senator, he was a very strong voice in the legislative house, advocating human rights, institutional balance, freedom of religion and belief, supremacy of the parliament, and provincial autonomy. He was also the managing editor of the Frontier Post. So, Faridullah Babar Sahab. So, I would request everyone to please be brief, 5 to 10 minutes. मोहतरम आमिर राना साहिब, ख़वातीन हज़रात,